यस वीडियोस आपका सबका एवरीवन सर स्टार्ट करूं? यस मैम प्लीज स्टार्ट Good evening, all of you. So let us continue. Good evening, ma'am. Good evening, गुड ma'am. इवनिंग तो सबका रिवीजन हो गया ना? Yes. Okay. So let me ask some questions. So let us revise whatever we have done. ठीक है? So can anyone tell me what is carbylamine reaction is? Carbylamine reaction. Anyone? If you don't open up. रैंडमली प्लीज आप हेलो हाँ sir. मैम या डोंट आस्क इन जनरल प्लीज रैंडमली टेक नेम्स एंड आस्क हाँ हाँ ठीक है. फर्स्ट लेक्चर ओनली राइट Yes. Okay, I'll only ask. प्लीज रैंडमली One second. Madhavi? Is Madhavi there? Madhavi is present? No? Okay. Aman Singh? Aman Singh? Absent? Ayush Giri? Varat? Varat Pawar? Yes, miss. हाँ बोलो. What is carbylamine reaction? What is carbylamine reaction? मैंने लास्ट टाइम किया था ना, डेफिनेशन लिख के नहीं रखा. Yes, miss. What is carbylamine reaction? Which compounds undergo carbylamine reaction? Huh? Varat, you know? Hello? You are saying something? भरत Yes, sir. Sorry, sir. Do you know the answer of the question ma'am has asked you? No, sir. Okay, leave the lecture, go study and come again. Leave the lecture, go out, and वापस आ जाओ. Sarthak, Yes, ma'am. what is carbylamine reaction?
Ma'am, aliphatic or aromatic compounds. Aromatic what? Which compound? Aromatic, aliphatic and aromatic. तो aldehyde, ketone, halogens कुछ भी हो सकता है ना. ये कौन सा कंपाउंड है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? कौन सा चैप्टर है ये? मैम अमाइंस. हाँ, तो एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइंस. अमाइंस. हाँ, बोलो अभी. Amines, primary amines on heating with chloroform gives offensive smell. Offensive smell. Only chloroform. Only chloroform. Ma'am, chloroform. Yes. Chloroform and Chloroform and potassium hydroxide. Okay, what is the product obtained? ma'am, alkyl isocyanates. Yes, alkyl or aryl isocyanide. Isocyanates. हाँ. Then how do you identify it? Product बना कि नहीं कैसे समझ में आता है? कलर से कि ओडर से, क्या आता है? मैम ओडर से. ओडर से. बहुत अच्छा ओडर आता है क्या? नहीं सर, नहीं मैम, बहुत बुरा होता है. ऑफेंसिव ओडर. ठीक है. ऑफेंसिव ओडर. So this is called as what? The carbylamine reaction. Okay, so what is carbylamine reaction? Sakshi, you say once again. Sakshi, can you repeat it? हाँ, बोलो. Aliphatic or aromatic primary amines on heating with chloroform chloroform gives And what? Chloroform and chloroform offensive. Chloroform and KOH, potassium hydroxide. Potassium KOH. हाँ. Product called aryl and alkyl isocyanide. हाँ. Okay, which compounds do not give this test? Which compound do not give this test? Secondary and tertiary. Secondary and tertiary amines do not give this test. ठीक है, ये याद रखो. Important point है. This is a distinguishing test of primary, secondary and tertiary amines. Tertiary. So I'll repeat the whole statement. Everyone please pay attention. I'll be asking this question again and again. These are certain name reactions which are very important. Okay, so what is carbylamine reaction? It is a reaction of aliphatic or aromatic primary amine on heating with chloroform and KOH produces an offensive odor of alkyl isocyanides. Okay, this reaction is known as carbylamine reaction. Okay, and this reaction is not given by whom? It is not given by secondary and tertiary amines. सिर्फ primary amines ये टेस्ट देता है. तो सपोज अभी तुम्हारे पास कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, तो ये अमाइन है मालूम है, लेकिन अमाइंस में कौन सा अमाइन है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है, वो पता करने का होगा ना. तो ये वाला टेस्ट करने का, तो क्या करने का, वो अननोन कंपाउंड को लेकर उसके अंदर क्लोरोफॉर्म और KOH डालो और हीट करो. थोड़े देर में ऐसे एक बैड स्मेल उसमें से निकला, तो मतलब क्या है कि जो अननोन कंपाउंड था वो प्राइमरी अमाइन है. कुछ स्मेल नहीं निकला तो मतलब है कि वो प्राइमरी अमाइन नहीं है, कुछ और अमाइन है, सेकेंडरी या टर्शियरी होगा. सो दिस इज हाउ वी डिस्टिंग्विश द अमाइंस. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. After some Yes, time also ma'am. I'll be asking it again, so I want you all to remember it now. ठीक है, Yes, ऐसे ma'am. blankly मत बैठना. Okay, now the next question is, what is acylation of amines? Preeti, Yes, ma'am. acylation of amines means? The aliphatic and aromatic amines undergo in the reaction where H is replaced by acetyl group is known as Acetyl group का फॉर्मूला बता सकती है? R single bond COOH.
See, RCO is acyl. तुमने acetyl बोला ना, तो CH3 C double bond O है. मैंने last time लिख के भी दिया था ना. When you say RCO, it is acyl. When that R is CH3, ठीक है, CH3 C double bond O रहेगा ना, उसको हम acetyl बोलते हैं. So when H of amines is replaced by this acyl or acetyl group, then that reaction is called as what? Acylation Solution of या amines. acetylation. ठीक है? Is it clear everyone? This is a very simple reaction, हाँ? Yes, के ma'am. ऊपर से क्वेश्चन आता है, तो बस इतना ही याद रखने का है कि अमाइंस का H को हम किससे रिप्लेस करने वाले हैं? असाइल ग्रुप से. ठीक है? व्हाट इज असाइल ग्रुप? कवल, व्हाट इज असाइल ग्रुप? असाइल फॉर्मूला क्या है? असाइल गया काम से, है ना? व्हाट इज असाइल? अभी बताया ना मैंने. असाइल इज व्हाट? फॉर्मूला याद रखने का. असाइल इज RCO. बोलो वापस. व्हाट इज असाइल? RCO. RCO. कौन बोल रहा है? कवल विल से. अनम्यूट योरसेल्फ. Come on, unmute yourself and talk. Kaval, no? Kawal. Unmute. Can you hear me? ठीक है, मैं सर को बताती हूँ. कवल इज नॉट ओपनिंग हिज माउथ. ओके. सेवा साल्वी, यू से. Yes, ma'am. व्हाट इज असाइल ग्रुप? Ma'am, it's RCl formula. R RCl is the formula. RCl नहीं, RC डबल बॉन्ड O. RCO आएगा. सिर्फ इतना पार्ट है ना, इसी को असाइल बोलते हैं. ठीक है? Yes, ma'am. When I say acetyl, then what will be the formula? acetyl का फॉर्मूला क्या रहेगा? R के बदले में क्या आएगा बोला था मैंने? CH3. हाँ, CH3. R के बदले पे CH3 आया, तो हम उसको acetyl बोलते हैं. ठीक है? Okay. Now the next question is, out of this aliphatic and aromatic amines, which one is more basic? Aliphatic and aromatic, इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है? सार्थक, Yes, ma'am. कौन बेसिक है ज्यादा? एलिफैटिक अमाइंस की एरोमेटिक अमाइंस? Ma'am, aliphatic. Why aliphatic is more basic? मैम एरोमेटिक का बताओ. मतलब एरोमेटिक में बेंजेन नहीं, बस मुझे इतना बता, बेसिक मतलब क्या है? हम किससे कैसे बोलते हैं ये ज्यादा बेसिक है, लेस बेसिक है? ऑन विच टर्म्स डू वी एक्सप्लेन इट? ये समझा रहेगा तो तुमको बोलने के लिए आएगा. बोलो. मैं बोल रही हूँ कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर. व्हाई वी आर सेइंग इट इज बेसिक इन नेचर? मतलब कुछ ध्यान नहीं दिया है ना, मैंने कितना बार ये सारे थिंग्स रिपीट किए थे. प्रीति, कैन यू से व्हाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर? Ma'am, can I say? 1 minute, 1 second. प्रीति, Yes, miss. हाँ बोलो प्रीति. व्हाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर? व्हाट मेक्स इट बेसिक? What makes it basic? I told all the definitions.
Asta, you say higher kb value. KB अभी इतना बड़ा बड़ा टर्म्स नहीं चाहिए, सिंपली बताओ कि बेसिक क्यों बोलते हैं. एंड अदर्स विल लिसन, आई विल बी आस्किंग यू ऑल अगेन. सार्थक, प्रीति, सुनो अभी. आस्था बोलो, व्हाई अमाइंस आर बेसिक. Who can say? Ma'am, shall I? She was trying, no? सेवा तुम बताओ. Ma'am, they donate more electrons. हाँ, so nitrogen has got what? Lone pair of electrons. Yes. ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो लोग अमीर है, उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो लोग क्या करते हैं? Yes. दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये जो टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन्स को देना, बांटना, इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक करके बोलते हैं. समझा? तो अमाइंस का जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो डोनेट करता है. किसको डोनेट करता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उनको देता है. समझा? तो ये जो क्या बोलूं, ये जो हैबिट है ना इनके पास, इसको हम बेसिक करके बोलते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है किसी को, उसको नॉट बेसिक बोलेंगे. जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज बेसिक. इज दिस क्लियर? ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो मैं जब भी अभी मैं बोलती हूँ कि एक ज्यादा बेसिक है, एक कम बेसिक है, तो मतलब क्या हो गया? एक ज्यादा बेसिक है और एक कम बेसिक है, तो मतलब क्या है कि एक बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा है donate और एक इलेक्ट्रॉन देने में कम. मतलब कम मुश्किल से करता दे है. रहा है. समझा? तो उसको हम लोग ज्यादा Yes. बेसिक और लेस बेसिक करके बोलते हैं. तो माय क्वेश्चन वाज, aliphatic amines are more basic than aromatic amines. So why that? ये क्वेश्चन आता है, गिव रीजन के टाइप में पूछ सकते हैं. So if you have understood, then only you can answer it. Otherwise ये सब कुछ काम का नहीं है. See, each and every line I have explained it to you all. और अभी पता चल रहा है कि तुम लोग पूरा वीडियो ऑफ करके पीछे सो रहे थे करके. सार्थक, अभी बताओ, why aliphatic amines are more basic than aromatic amines? Ma'am, aliphatics are more donating than aromatic amines. हाँ, वो हो गया, ठीक है. But any other reason for that? Ma'am, nitrogen has more donating power. हाँ, नाइट्रोजन तो Lone pair. aliphatic amine में भी है, aromatic amine में भी है. But what makes aromatic amine less basic? मैम, एरोमेटिक अमाइंस के पास लोन पेयर कम होता है नाइट्रोजन के पास. कहाँ जाता है फिर वो? Where does it go then? Anyone? Ma'am, resonance. प्राची बोलो. Yes, ma'am. हाँ बोलो प्राची, क्या बोला? Ma'am, because the lone pair of aromatic amine is involved in resonance. Involved in the resonance. समझा? बेंजीन रिंग के ऊपर जो नाइट्रोजन है ना, वो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस पे चला जाता है. सो सिंस इट इज बिजी इन दैट रेजोनेंस, ठीक है, इट इज नॉट देयर फॉर डोनेशन. डोनेट करने के लिए वो रेडी नहीं रहता है. सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स लेस बेसिक. सी, इट इज लाइक दिस. अभी सपोज इफ आई हैव 1 लाख अमाउंट विथ मी, मेरे पास कुछ पैसे है, ठीक है, वो तुमको भी मालूम है कि मेरे पास पैसे है, लेकिन if I want to donate it, it should be there in my hand, no, to give it immediately. लेकिन सपोज मैं वो अमाउंट को मैं बैंक में या किसी और को दे के रखी हूँ, तो जब भी तुम आके मुझे पूछेंगे, मैं जल्दी से डोनेट दे सकेगी क्या? नहीं ना. सो द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द बेंजीन रिंग का नाइट्रोजन. बेंजीन रिंग के ऊपर जो नाइट्रोजन है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस पे इन्वॉल्व है, वो फ्री नहीं है अभी. समझा? तो कोई आके उसके पास इलेक्ट्रॉन पूछा, वो तो वो जल्दी से दे नहीं पाता है. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग इट? एंड दिस इज द रीजन व्हाई द एरोमेटिक कंपाउंड्स बिकम्स लेस बेसिक. लेकिन एलिफैटिक अमाइन के पास वैसा कुछ है नहीं, बेंजीन रिंग वगैरह कुछ नहीं है ना वहां पर डीलोकलाइजेशन के लिए, रेजोनेंस के लिए.
तो इसके लिए उसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली अवेलेबल रहता है, ठीक है। सो सिंस इट इज इजीली अवेलेबल, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आएगा ना तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। सो सिंस एलिफैटिक अमाइंस डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन इजीली, वी से दैट दे आर मोर बेसिक। अभी समझ में आया क्या? सी नाउ आई कैन नॉट टेक द होल चैप्टर अगेन। ना तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग्स होगा ना, थोड़ा जाके रिकॉर्डिंग्स देखो वापस, मैंने पूरा एक एक पॉइंट करके उसमें क्लियरली बताया था, ठीक है। Is it clear everyone? So this point is very important. So next time Yes, when you ma'am. go to the class, Yes. tomorrow I'm going to give you all some Yes, ma'am. now. Tomorrow I'll be taking the orals of you all. ठीक है, नोट डाउन करके रखो। I want you all to give me the answers for those questions. ठीक है, 5 क्वेश्चंस देगी मैं अभी। चलो लिखो। पहला क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा कार्बिल अमाइन का रिएक्शन। व्हाट इज कार्बिल अमाइन रिएक्शन? पूरा डेफिनेशन रिएक्शन के साथ पूरा पढ़ के बैठेंगे, हाँ? कोई ब्लैंकली नहीं बैठेगा। कल आते ही मैं क्वेश्चन पूछेगी, नहीं तो मैं ही तुम लोगों को बाहर उठा देगी। हाँ, यू शुड नॉट सिट लाइक दिस ब्लाइंडली, ठीक है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा कार्बिल अमाइन रिएक्शंस के ऊपर है। सेकेंड इज असाइलेशन ऑफ अमाइंस। व्हाट इज असाइलेशन ऑफ अमाइंस? उसका एग्जाम्पल याद रखने का। That is your second question. Third question is why aliphatic amine is more basic than aromatic amines? Why aliphatic amines is more basic? Note it down. अभी इधर उधर मत देखो, लिख के रखो questions. Why aliphatic amines is more basic than aromatic amines? 3 हो गया ना। फोर्थ वन, गैब्रियल थालीइमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थालीइमाइड सिंथेसिस। Gabriel Thalliamide synthesis. And the fifth one is Hoffman's degradation reaction. Hoffman's degradation reaction. Okay, so 5 questions I have given. Carbylamine, acylation, Gabriel Thalliamide, Hoffman और एक वो basicity वाला, ठीक है। Everyone should answer. I don't want anyone to sit blindly over here, हाँ? ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tomorrow I'll be asking you all these questions randomly. Yes, ma'am. नहीं तो बाहर थोड़ा तो मुंह खोल के आंसर करो यार, घर वालों थोड़ा खुश हो जाएंगे, फीस भरा वेस्ट नहीं गया करके, हाँ। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू नाउ विद द रिएक्शन पार्ट। तो रिएक्शंस में व्हाट रिएक्शन वी आर गोइंग टू सी इज reactions with nitrous acid. Now please keep your ears open, I'll be asking you all the questions in between, ठीक है। अभी मुझे पता चल गया तुम लोग कितना ध्यान से सुनते हैं करके, so now I have to be alert, ठीक है। So now the next I'll be sharing my screen, just a minute. Can you all see my screen? Yes, ma'am. Now pay attention, all of you. Reactions with nitrous acid. Can anyone tell me what is the formula of nitric acid? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला कोई बता सकता है? H. HNO3. Yes. Okay, so see here, reaction with nitrous acid.
नाउ you all know the formula of nitric acid. Nitric acid is HNO3, ये जो हम लोग लेबोरेटरी में वगैरह सब यूज करते हैं, ठीक है। इसको है ना हम लोग बॉटल पे स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ये जो नाइट्रस एसिड है ना, इसका फॉर्मूला है HNO2, ठीक है। फॉर्मूला इज HNO2। ये जो है वो एकदम अनस्टेबल होता है। दिस कैनॉट बी स्टोर्ड इन अ बॉटल, इसको बॉटल में बंद करके हम लोग नहीं रख सकते, ठीक है। सो इसके लिए क्या करते हैं, वेन एवर दिस इज रिक्वायर्ड नो, इट इज प्रिपेयर्ड इन सिटू, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड इन व्हाट, इन सिटू। अभी ये इन सिटू का मतलब क्या है, जब भी चाहिए तभी बनाते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बना के एक बॉटल में रेडीमेड आता है, वैसा ये मिलता नहीं है, बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल, ये ना खराब हो जाती है। तो इसके लिए जब चाहिए इसको है ना हम लोग बनाते हैं और यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इन सिटू, ठीक है। तो ये जो नाइट्रस एसिड है, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग NaNO2 and HCl together। इसको हम कैसे बनाते हैं, by treating NaNO2 and HCl together। इन दोनों को साथ पे मिक्स करेंगे ना तो हमको क्या मिलता है, we get HNO2, sodium nitrite plus HCl। These two together will give you what, HNO2, which is nothing but the nitrous acid, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे ये रिएक्शन देखने वाले हैं, ये नाइट्रस क्या क्या रिएक्शंस करता है करके, ठीक है। सो नाउ सी हियर, लेट अस टेक द प्राइमरी अमाइन, ठीक है। दिस इज अ प्राइमरी अमाइन, दिस इज योर सेकेंडरी अमाइन एंड दिस इज योर टर्शियरी अमाइन। ये जो अमाइंस है ना, ये तीनों नाइट्रस एसिड के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ऑल दिस थ्री रिएक्ट डिफरेंटली विद दिस नाइट्रस एसिड। ये कुछ और प्रोडक्ट बनाता है तो ये कुछ कैसे रिएक्शन करता है और ये कुछ और करता है, समझा। तो हर एक का अलग अलग रिएक्शंस होता है ये HNO2 के साथ। लेकिन अभी हम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ प्राइमरी अमाइन के साथ क्या होता है वही सिर्फ पढ़ने वाले हैं। सो वी आर नॉट बॉदर्ड विद दिस टू पार्ट। सेकेंडरी और टर्शियरी HNO2 के साथ कैसे रिएक्ट करता है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू लर्न इट, okay। So we are going to concentrate on this primary amines only। So now let us see what happens। So when I take a primary amine, ठीक है, ये primary amine है। primary amines में मैं ना NaNO2 और HCl डाल रही हूँ। what I am going to add, NaNO2 and HCl, ठीक है। when I put this two together, no, what will happen, ये दोनों react करके क्या produce करेगा, HNO2 produce करेगा और वो HNO2 इसके साथ रिएक्ट करता है। समझ में आया क्या, ये HNO2 हमने डाला नहीं है, ये क्या है, बना है। कैसे बना, इन दोनों का रिएक्शंस के वजह से। हैव यू अंडरस्टूड दिस, हाउ Yes. Yes, ma'am. formed from what, NaNO2 and HCl, ठीक है। और ये वाले रिएक्शंस में है ना, टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ऑलरेडी बोला ना ये हाईली अनस्टेबल है करके, ठीक है। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो ही तुम्हारा रिएक्शन थोड़ा बहुत तो आगे जाएगा, अदरवाइज तुम्हारा रिएक्शन अच्छे से नहीं होगा। सो मेंटेनिंग अ टेम्परेचर एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केल्विन्स में बात करेंगे तो इट इज 273 to 278 केल्विन, ठीक है। तो ये वाला टेम्परेचर मेंटेन करना यहाँ पर जरूरी है। सो नाउ व्हाट हैपेंस, सी ये प्राइमरी अमाइन को HNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे ना, व्हाट हैपेंस इज दिस ग्रुप, ये जो ग्रुप है ना ये क्या बन जाता है, देखो, दिस विल बिकम, R विल रिमेन एज इट इज, R ग्रुप कुछ भी होने दो वो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो NH2 है वो क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा, ठीक है। व्हाट इट विल फॉर्म, इसका ये रिएक्शन बहुत बड़ा है, तुम लोगों को वो सब अंदर नहीं जाने का है। यू जस्ट डायरेक्टली रिमेंबर कि NH2 जो है वो क्या बन जाएगा, N2 प्लस और बाजू में क्या आएगा, Cl माइनस, ठीक है। दिस विल बी द प्रोडक्ट विच विल बी ऑब्टेन्ड। आई रिपीट इट अगेन, व्हेन अ प्राइमरी अमाइन is treated with NaNO2 and HCl, what happens, HNO2 is produced and that reacts with this primary amine to form what, RN2 plus
Cl minus. Okay, can anyone tell me the name of this compound? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? R ग्रुप को क्या बोलते हैं? Alkyl. Alkyl. अल्काइल. ठीक है, ये N को क्या बोलते हैं? Nitrogen. इसका नाइट्रोजन का दूसरा एक नाम है अजा. ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका? अजा. अब यहाँ पर कितने नाइट्रोजन्स हैं? 2. तो मैं क्या बोलेगी? डाई. बराबर. अभी यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो मैंने तुम लोगों को बताया था, याद है? पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसका एंडिंग नाम कैसे आएगा करके? IUM. इट विल एंड विथ व्हाट? IUM. सो इसका नाम क्या रहेगा पता है? इट विल बी कॉल्ड एज अल्काइल डाई अजोनियम. ठीक है, ये क्या रहेगा? Chloride. Chloride. So the product formed here is what? Alkyl diazonium chloride. Is this clear? And this is also a unstable product. इसके लिए हम इसको ना ब्रैकेट में डालते हैं. ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है. समझ में आया क्या? Yes. Yes. यहाँ पर ना ये Yes. सॉल्ट है. दिस इज वन सॉल्ट. प्लस माइनस चार्ज है ना इसमें, ये एक सॉल्ट है. इसको हम लोग डायजोनियम सॉल्ट बोलते हैं. ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज diazotization. This process is called as what? Diazotization. Is this clear, everyone? This is Yes, called ma'am. as Yes, ma'am. diazotization reaction. Okay, so alkyl diazonium chloride is formed. अभी ये जो अल्काइल डायजोनियम अल्काइल क्लोराइड है ना, इसके साथ हम लोग पानी डालेंगे. If I put water into it, this is unstable. So immediately what will happen is, ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा. ये जो N2 वाला ग्रुप है ना, ये पूरा निकल जाएगा और वाटर में से OH यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, तो R के साथ क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा. प्लस बाहर क्या निकलेगा? N2 बाहर निकल जाएगा. ठीक है, प्लस HCl. So this will be the byproducts which will be formed. Okay, I repeat, this alkyl diazonium salt, when you treat it with what? Water. ठीक है, या उसके अंदर थोड़ा बहुत वाटर तो रहेगा ही ना, वो वाटर के साथ वो रिएक्ट करके क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है. देखो R, ये पूरा इसके बदले पे क्या आ गया? सब्स्टिट्यूशन हो गया है ना. दिस होल ग्रुप हैज गॉट सब्स्टिट्यूटेड विद व्हाट? OH. और N2 क्या बन गया? बाहर उड़ गया, प्लस HCl बन गया. ठीक है, ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, मतलब पूरा केमिस्ट्री में अच्छा लिविंग ग्रुप करके पूछेंगे ना, तो यही अच्छा लिविंग ग्रुप है. जल्दी से बाहर उड़ जाता है. ठीक है, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज हाईली स्टेबल, तो इसके लिए ना ये जल्दी से निकल जाता है बाहर. तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ये अनस्टेबल है करके इसको ऐसे ब्रैकेट पे डाल के रखा है. देखो, ठीक है. तो देखो अभी क्या बन गया? अपने पास क्या था? प्राइमरी अमाइन था ना, फंक्शनल ग्रुप अपने पास अमाइन था, लेकिन ये क्या बन गया? OH बन गया. बराबर. वी हैव कन्वर्टेड एन अमाइन. अमाइन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? वी हैव कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल. बराबर. यस और नो? Yes. लगेगा Ma'am. ये इतना घूम फिर के ये काम क्यों करने का करके. बराबर. अमाइन को अल्कोहल ही तो बनाने का है ना, तो RNH2 को डायरेक्टली पानी के साथ ही मिलाओ ना. ऐसे भी तुमको लगेगा, ऐसे सब सारे डाउट्स आएंगे ये टाइम पे. ठीक है, आना भी चाहिए. यू मे थिंक डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट करो तो ये डायरेक्टली ROH बन जाएगा, लेकिन ये ऐसा एक्चुअली बनता नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? क्योंकि ना देखो, ये NH2 ग्रुप अपना जगह खाली करेगा तो यहाँ से OH आ सकेगा ना. यस और नो? दिस NH2 Yes. Yes, ma'am. पैकेट फर्स्ट. नो, सी अभी सपोज मेरा घर है, एक घर है मेरे पास, मुझे वहां पर कोई नए लोग को लेकर आना है, तो जो लोग पहले से है उनको पहले बाहर निकालने का ना, फिर नए लोग को मैं अंदर ला सकती हूँ. तो वैसे ही ये एक ग्रुप है ऑलरेडी, पहले इसको निकालने का. एंड दिस इज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप. ये जल्दी से बाहर निकलता ही नहीं है. तो क्या करना पड़ता है पता है? थोड़ा ऐसे धमकी वमकी सब देते हैं ना, तो वैसे इसको है ना बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो वो गुड लिविंग ग्रुप ये वाला N2 है. समझा? तो जब भी तुमको ये NH2 ग्रुप को हटाकर उस जगह पर कोई भी ग्रुप लेकर आने का रहेगा ना, तो पहला स्टेप तुम्हारा यही होगा, इसको N2 में कन्वर्ट करो.
ये बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करो। एक बार तुम लोगों ने इसमें कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर तुम लोग कुछ भी ग्रुप लेकर आ सकते हैं। हियर यू कैन ब्रिंग एनी ग्रुप देन, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। समझ में आया क्या? Are you all getting what I'm Yes, trying ma'am. to say? This is Yes, called ma'am. creating numbers, huh? This is how actually you should learn. सीधा सीधा बाय हार्ट करते जाएंगे ना तो एक पॉइंट में तुम लोग ऐसे एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, फिर क्या क्या चल रहा है यहाँ पर करके। So for that purpose I am saying all these things to you all. ठीक है? So RNH2 को हम लोग बैड लिविंग ग्रुप, यहाँ पर चाहे तो तुम लोग लिख के रखो ये बैड लिविंग ग्रुप है। टर्म्स बराबर ही है, ऐसे कुछ मैं ऐसे अपने ओन से नहीं बोल रही हूँ, ऐसे ही बोलते हैं इसको। ये बैड लिविंग ग्रुप है, इसको हमने क्या कर दिया, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने वाटर डाला तो ये ग्रुप रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस NH2 ग्रुप विद दिस OH ग्रुप। ठीक है, एक बार देखो और स्क्रीनशॉट ले लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड। स्क्रीनशॉट भी ले लेना साथ साथ। Yes. हो गया, समझा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अभी तुम लोग मुझे इसका आंसर बताना ये क्या आएगा करके। पहले मुझे इसका नाम बताओ। व्हाट इज दिस? Aniline. इट इज aniline। Aniline. क्या रखो या बुलाओ, both are one and the same, huh? Both are one and the same. This is sleeping benzene, that's it, but both are aniline only, huh? ठीक है, this is also aniline, this is also aniline। अभी aniline के साथ मैं क्या कर रही हूँ, I am going to add NaNO2 and HCl and I am going to maintain the temperature। ठीक है, तो इन दोनों को रिएक्ट किया तो मुझे क्या मिला, HNO2 बना। वो HNO2 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। अभी मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, मुझे बस फॉर्मूला बताओ फिर नाम लिखेंगे हम लोग। सोच के बताओ, बेंजीन रिंग को कुछ होगा क्या? No, No, ma'am. ma'am. नो, सो आई राइट द हाँ। बेंजीन रिंग एज इट इज। ओके, अभी NH2 को कुछ होगा? NH2 को क्या होगा? N2 N2 बन जाएगा। N2 के ऊपर plus charge. Positive. Positive. और क्या आएगा? Cl माइनस आएगा। minus. अभी मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा? ये क्या है? Benzene ring. बेंजीन। बेंजीन Diazonium chloride. डायazonium क्लोराइड। ठीक है, तो डायazonium सॉल्ट बन गया। प्रोसेस का नाम क्या है? Diazotization. Azotization। What is the temperature maintained? 0 to 5 degree. 5 degree. केल्विन पे बोलना, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सब केल्विन पे है। 273 to 7. 278 केल्विन। ठीक है, अभी ना ये N2 को ना हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया हुआ है। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, बोथ आर वन एंड द सेम। ठीक है, और इसका है ना, व्हेन यू कंपेयर दिस विद द अबव वन, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। विच वन इज मोर स्टेबल? ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है ना, दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द अबव वन, जो हम लोगों ने प्राइमरी अमाइन से बनाया था ना, अल्काइल डायज़ोनियम सॉल्ट से ये वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों, कोई बता सकता है क्या? क्यों, कोई बता सकता है? किधर भी बेंजीन रिंग आएगा ना, एक वर्ड याद रख लेना, रेजोनेंस। ठीक है, अभी बोलो, व्हाई इट इज स्टेबल? Because More the resonating structure, more the stability. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। सो मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी। नो, ये इसके साथ पॉसिबल है क्या? RN2 प्लस Cl माइनस के साथ पॉसिबल है? यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है क्या? नहीं ना, रेजोनेंस होने के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए ना।
यहाँ पर डबल Yes. बॉन्ड वाला कंपाउंड ही नहीं है, तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है. सो दैट इज व्हाई दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी देखते हैं कौन कौन सो रहे थे करके. हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. लिया? Yes. Yes, ma'am. ओके, लेट मी चेक नाउ. नो मैम नहीं लिया, 1 मिनट दिखाओ ना वापिस. डर गया? लिया? डन? यस मैम. ओके. दिशा? Yes, ma'am. हाँ बोलो, कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग? Ma'am, the reaction of primary amines with HNO3, HNO2, उसका नाम क्या है HNO2 का? nitric acid. नाइट्रस एसिड. ठीक है, नाइट्रस एसिड बॉटल में मिलता है क्या? क्या मिस? नाइट्रस एसिड बॉटल में अवेलेबल रहता है? Yes. Yes. So you will buy it for me? हाँ? नो मिस नहीं रहता. No, miss, it is in the laboratory. It is लेबोरेटरी में क्या करना पड़ता है, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है. ठीक है, कोई बॉटल्स में हम लोग को वो अवेलेबल, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आती है ना, वैसे नाइट्रस एसिड का बॉटल नहीं आता है, हमको वो बनाना पड़ता है. ठीक है, why do we have to prepare it? Because it is highly unstable. वो बहुत अनस्टेबल होता है, जल्दी से वो खराब हो जाती है. ठीक है, तो इसके लिए हमको जब चाहिए तभी बनाना पड़ता है. और वो ऐसे टाइप ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड इन सिटू. ठीक है, HNO2 इज प्रिपेयर्ड व्हाट? इन सिटू. नाउ आदित्य, यू से हाउ इज HNO2 प्रिपेयर्ड? नाइट्रस एसिड प्रिपरेशन कैसे करते हैं आदित्य? by reacting NaNO2 and HCl. By reacting NaNO2 with HCl. ठीक है, Ritika, you say what happens when a primary amine is treated with NaNO2 and HCl? What is the product formed? RN2Cl. RN2Cl. उसका नाम क्या है? Alkyl diazonium chloride. Now, what is this reaction called as? Whole reaction? Diazonation. Diazotization reaction. ठीक है, diazotization reaction. Okay. So now let us continue with further reactions. तुम्हारे पास, सबके पास टेक्स्ट बुक है ना? मैं ना टेक्स्ट बुक का एक पेज बताती हूँ, वो देखना. ठीक है, I'll share the screen now. Just a minute. Can you all see the screen now? यस मिस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So अभी देखना. Yes, ma'am. हाँ, now just listen carefully. हाँ, actually तुम लोगों को क्या कर दिया ना, सारे रिएक्शन को एक टैबुलर फॉर्म पे दे दिया है. सो ये जो डायजोनियम सॉल्ट हमने बनाया है ना, डायजोनियम सॉल्ट मतलब क्या? ArN2 प्लस X माइनस, ये X कुछ भी हो सकता है. ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट ही है ना ये. तो ये जो डायजोनियम सॉल्ट हमने बनाया है, इसको यूज करके ना हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं. वी कैन प्रिपेयर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, क्योंकि ना जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग इससे हैलोजेंस बना सकते हैं, अल्काइल अराइल हलाइड्स बना सकते हैं, ARX अराइल हलाइड्स बना सकते हैं. यू कैन प्रिपेयर अ बेंजीन रिंग. ठीक है, यू कैन प्रिपेयर अ फिनॉल्स. ओके, तो ऐसे करके ना ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं तुम लोग. तो एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर है ना 2 ऑप्शंस है अपने पास. ये जो डायजोनियम सॉल्ट है ना, ये डायजोनियम सॉल्ट में से ये N2 को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग.
ठीक है, N2 को X से रिप्लेस कर सकते हैं, या N2 को H से रिप्लेस कर सकते हैं, या N2 को OH से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे रिप्लेस करके हम लोगों को ये सब प्रोडक्ट बनती है। दिस इज ऑब्टेन बाय व्हाट? बाय रिप्लेसिंग द N2 ग्रुप। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन है। दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं पता है? ये N2 को रिप्लेस नहीं करते हैं, दिस इज रिटेन्ड। ठीक है, उसको रखते हैं, इसको निकालते नहीं है, इसको रिटेन करते हैं, एंड इट इज मेड टू रिएक्ट विद समथिंग एल्स, और किसी के साथ रिएक्ट करने रखते हैं। तो वो टाइप ऑफ रिएक्शंस को है ना क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो डायजोनियम सॉल्ट्स के साथ दो टाइप ऑफ रिएक्शन है। एक रिएक्शन में क्या होता है, ये N2 ग्रुप को पूरा रिप्लेस कर देते हैं। दिस ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड बाय X, दिस ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड बाय H या OH से। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर रिप्लेस होता है। और दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? यहाँ पर N2 को हम लोग रिप्लेस नहीं करते, उसको रिटेन करते हैं, उसको रखते हैं, निकालते नहीं है, और किसी और के साथ रिएक्ट करते हैं। तो वो टाइप ऑफ रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ कपलिंग रिएक्शन। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और Yes, ma'am. सपोज मेरे पास एक अमाइन Yes, ma'am. NH2 है। ठीक है, अभी मुझे ना इसको ArOH में कन्वर्ट करना है। तो इज दिस पॉसिबल डायरेक्टली? ArNH2 को ArOH में मैं डायरेक्टली No, ma'am. No. Oh, ma'am, कर सकती हूँ? व्हाई नो? because NH2 is a bad NH2 is a bad badly living group. living group. NH2 इज अ बैड लिविंग ग्रुप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले? NH2 को N2 में कन्वर्ट Converted to living group. क्यों? N2 इज अ Good living good group. living group. Good living group. बैड लिविंग ग्रुप को मुझे गुड लिविंग ग्रुप में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, जो भी अमाइंस है मेरे पास, इसको मैं पहले क्या करेगी? ArN2 प्लस X माइनस में कन्वर्ट करेगी, फिर बाद में मुझे जो बनाने का है मैं वो बनाए। समझा? सो एनीथिंग, एनी दिस टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट टू बी ऑब्टेन्ड, इट विल गो वाया व्हाट? वाया दिस पाथ। समझ में आ रहा है क्या? तो अमाइंस को तुमको Yes, कुछ भी किसी में भी कन्वर्ट करने का होगा, तो पहले तुमको सब में क्या करना पड़ेगा? ये डायजोटाइजेशन करना पड़ेगा। ये करने के बाद ही तुम लोग आगे कुछ भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट वन स्टेप में होगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है वही ये चार्ट पे दिया हुआ है। हाँ? तो देखो यहाँ पर, तो कैन यू ऑल सी दिस टेबल एवरीवन? Yes, ma'am. यहाँ पर देखो पहला रिएक्शन क्या है? सैंड मेयर्स रिएक्शन। ठीक है, तो सैंड मेयर रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? वी हैव दिस डायजोनियम सॉल्ट। अभी ये मालूम है ना तुमको कैसे बना रहेगा करके? यस और नो? इन्होंने डायरेक्टली दे दिया है। ठीक है, तो डायजोनियम सॉल्ट के साथ CuCl और HCl डाला, तो तुमको कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है? ArCl मिलने वाला है। समझ रहा है तुमको? क्योंकि यहाँ पर Yes, ma'am. है ना, रिएजेंट yes. क्लोरीन है देखो, तो तुमको ArCl मिलेगा, तो अराइल क्लोराइड मिल जाएगा, और बाहर क्या निकलेगा? N2 बाहर निकलेगा गैस बन के। ठीक है, सेम उसी के साथ CuBr और HBr डाला तो क्या बनेगा? ArBr बनेगा। ठीक है, ब्रोमीन ग्रुप आएगा। इफ यू ट्रीट इट विद साइनाइड ग्रुप, यू विल गेट साइनाइड। समझा ये वाला रिएक्शन? मैम इसमें ma'am. दोनों में से एक यूज करना है ना, CuCl एंड HCl, ये दोनों भी यूज करना पड़ता है? नहीं, दोनों है, सुप्रस क्लोराइड विथ HCl। ओके मैम। ये दोनों एक साथ रहेगा, ये दोनों एक साथ रहेगा। देखो CuBr किया तो यहाँ पर भी HBr यूज करने का। सॉल्वेंट भी सेम हैलोजेंस का होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखो CuCN है, तो यहाँ पर ये KCN यूज किया है। So whatever the product you want, accordingly you will have to select the reagent. और ये सैंडमेयर रिएक्शन है ना, इसका ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे से आता है। इट गिव्स यू अ वेरी गुड yield also, बहुत अमाउंट भी बहुत अच्छे से बनता है। So is this clear everyone? Yes. Yes, दूसरा है गैटरमेंस रिएक्शन। अब ये गैटरमेंस रिएक्शन में ना सिर्फ ये रिएजेंट्स अलग होती है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट देखो सेम ही है। तुमको गैटरमेंस रिएक्शन में ArCl बेंजीन विद क्लोरीन चाहिए, अराइल हैलाइड,
तो तुमको क्या यूज करना पड़ेगा, कॉपर पाउडर और HCl यूज करना पड़ेगा। इधर इन्होंने CuCl यूज किया ना, इधर इन्होंने क्या यूज किया, कॉपर पाउडर यूज किया, लेकिन इसका यील्ड उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और तुमको Br चाहिए तो कॉपर पाउडर और HBr यूज करने का, ठीक है। प्रोडक्ट विल बी द सेम, बस यहाँ पर CuCl है, यहाँ पर कॉपर पाउडर है, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Yes, ये ma'am. वाला देखो, आयोडीन चाहिए, आयोडीन बनाने का, ARI बेंजीन रिंग के ऊपर तुमको आयोडीन चाहिए, तो क्या रिएजेंट यूज करेंगे, KI यूज करेंगे। तो KI यूज करने पर डायजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, N2 बाहर निकल जाता है और उस जगह पर ARI आ जाती है। समझा गया? Yes. Yes, ma'am. Yes. Now the next reaction is what? Mild reduction. ठीक है? So here when you treat this with H3PO2, that is hypophosphorus acid. Hypophosphorus acid. एक मिनट हाँ, zoom करती हूँ मैं। So this is hypophosphorus acid. When you treat it with hypophosphorus acid, no, what is happening? See, बस ये पूरा N2 ग्रुप निकल गया और उस जगह पर क्या आ गया, उस जगह पर H आ गया, है ना। N2 ग्रुप निकला और उस जगह पर H आ गया, यस और नो। तो ये क्या प्रोडक्ट है, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, ARH मतलब क्या है प्रोडक्ट, Benzene ring. ARH is benzene ring, है ना। ARH is what, benzene ring. See here, ये ऐसे था ना, N2 plus Cl minus ऐसे था, ठीक है। जब इसको तुम लोगों ने H3PO2 के साथ रिएक्ट किया तो क्या होता है, ये पूरा ग्रुप निकल जाता है और उसके ऊपर क्या आ गया, H आ गया, ARH। ये क्या है, बेंजीन ही है ना। So you have converted this diazonium salt into what, a benzene ring, ठीक है, प्योर बेंजीन रिंग मिल गया। So that is what is mentioned here, ARH, और ये सब उसका बाय प्रोडक्ट है। समझा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Similarly, Yes, if you treat it with alcohol, ये एक अल्कोहल ही है ना, इथाइल अल्कोहल है ना, C2H5OH। तो इथाइल अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट किया तो यही प्रोडक्ट बनने वाला है, बेंजीन रिंग ही बनेगा। देखो ARH बन गया, ठीक है। यस और नो? Yes. Yes, ma'am. नाउ दिस वन, फिनॉल फॉर्मेशन। यहाँ पर तुमने वाटर के साथ ट्रीट किया एट 283 केल्विन, देन व्हाट हैपेंस, N2 के बदले में OH आ गया। अभी मुझे बोलो ये क्या है, AROH मतलब क्या है, AROH Phenol. Benzene. यहाँ पर फिनॉल इज द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड। समझ में आया क्या? इजी रिएक्शन ma'am. Yes, ma'am. करने का है, ठीक है। तो सी, अभी तुम लोग मुझे आंसर देना, ठीक है। अब मुझे बोलो, आई हैव ArN2, 1 मिनट, मैं AR नहीं लिखती हूँ, मैं बेंजीन ही लिखती हूँ, ठीक है। N2 plus Cl minus, I am treating it with copper powder and HBr. Tell me what will be the product? कॉपर पाउडर और HBr डाला तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? Benzene ring with Benzene ring. This group will be replaced, no? This will be replaced with Yes, with Br. Br. Brom- Br. ठीक है, Br. तो प्रोडक्ट का नाम क्या है? हैलोजन हो गया ना तुम्हारा? What is the name? Very bad. Bromobenzene. Yes or no? Yes, ma'am. Ki. अभी क्या बनेगा बोलो? Iodobenzene. आयोडोबेंजीन। यहाँ पर क्या आएगा, आयोडीन आ जाएगा, ठीक है। आयोडोबेंजीन will be formed. If I treat it with water at 283 Kelvin, what I'll get? Phenol. I'll get phenol.
ठीक है. If I treat it with alcohol, what I'll get? If I treat it with alcohol, what I'll get? Benzene ring plus NO2. ठीक है. So this is how you will have to remember it. Is this clear, all of you? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the next reaction, see. थोड़ा ये ना यहाँ पर फ्लोरीन ग्रुप लेकर आना थोड़ा मुश्किल है. तुमने यहाँ पर देखा होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब कुछ आया है, लेकिन फ्लोरीन नहीं आया है ना. तो फ्लोरीन को थोड़ा लेकर आना मुश्किल है, उसका रिएजेंट थोड़ा अलग है. ठीक है. तो हम लोग ये फ्लोरिनेशन कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं. सो दिस इज रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड. देखो, अरीन डायजोनियम सॉल्ट, अरीन मीन्स ये बेंजीन रिंग वाला, अरीन डायजोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड, दैट इज HbF4. फ्लोरोबोरिक एसिड gives precipitate of diazonium फ्लोरोबोरेट. क्या बनता है यहाँ पर? डायजोनियम फ्लोरोब्रोमेट बन रहा है. देखो, ये तुम्हारा डायजोनियम है N2+, और ये तुम्हारा BF4- क्या है? फ्लोरोबोरेट है. अभी इसका नाम ATE में खत्म क्यों हुआ? ATE में खत्म क्यों हुआ? Negative charge. Negative charge. ATE या IDE में खत्म होता है, तो इसके लिए ATE में खत्म हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है? देखो, वहां पर सब क्या बन रहा था, ये इसी से हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर एक और नया स्टेप है. डायजोनियम सॉल्ट को हम लोग वापस इसको बोरेट, फ्लोरोबोरेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको फर्दर डिकम्पोज कर रहे हैं. So this on further decomposition, on heating, it gives you what? Fluorobenzene. दिख रहा है क्या तुम लोगों को? Fluorobenzene. So when you heat this one, you will get fluorobenzene. जैसे वहां पर आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन सब बना ना, वैसे यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बना. समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है. तो फ्लोरोबेंजीन हम लोग डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं. पहले क्या करना पड़ेगा? ये डायजोनियम सॉल्ट को फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करना पड़ेगा. ये क्या बनाएगा? फ्लोरोबोरेट बनाएगा. ठीक है. दिस इज द वन, एंड दिस ऑन हीटिंग विल डिकम्पोज टू फॉर्म व्हाट? फ्लोरोबेंजीन. ठीक है. ये एक है, और दूसरा क्या है? ये वाला. इसको कॉपर और NaNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो तुमको ये नाइट्रोबेंजीन भी तुम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पर अपने पास दो ऑप्शन है. सिर्फ ऐसे ही हीट करो तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा, उसके साथ कॉपर NaNO2 का सोल्यूशन डाल दिया तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा. ठीक है. तो नाइट्रोबेंजीन भी हम लोग इस तरह से बना सकते हैं. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब ये वाला जो Yes, रिएक्शन है ना, ये जो पहला वाला फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिख के रखो. दैट रिएक्शन इज नोन एज Balch-Schiemann reaction. This is the name of that reaction. फ्लोरोबेंजीन बन रहा है ना, फ्लोरोबेंजीन जो मेथड से हम लोग बना रहे हैं, वो मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? Balch-Schiemann reaction. ठीक है. Understood everyone? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. अभी नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट हम लोग कपलिंग रिएक्शंस देखने वाले हैं. ठीक है. मैंने क्या बोला था? कपलिंग रिएक्शन क्या है बोला था मैंने? व्हाट डिड आई से अबाउट कपलिंग रिएक्शन? यहाँ पर N2 ग्रुप निकालेंगे कि रिटेन करेंगे? Retain करेंगे. Retain. Retain Retain करेंगे. ठीक है. तो क्या करने वाले हैं? A और B दो ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हैं, और बीच में क्या आने वाला है? N2 का ग्रुप आने वाला है. समझा? दो ग्रुप साइड पे रहेगा A और B, बीच में क्या रहेगा? दिस A and B will be connected by N डबल बॉन्ड N. ये डायजो ग्रुप से कनेक्टेड होने वाला है. तो इसके लिए ये वाला ग्रुप, ये वाला रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शंस करके बोलते हैं. तो सी हियर, अरीन डायजोनियम सॉल्ट when treated with certain reactive aromatic compounds such as phenol या aromatic amines, it gives the azo compound. ठीक है. डायजोनियम सॉल्ट के साथ तुम लोग फिनॉल या कोई एरोमेटिक अमाइन डालेंगे तो कपलिंग रिएक्शंस होता है, अजो प्रोडक्ट बनता है.
These have extended conjugated system of double bond. मैं क्या है बताती हूँ. In which two aromatic rings are joined through azo group. इसको azo group बोलते हैं. N double bond N. This reaction is called as azo coupling reaction. Azo compounds are brightly colored and are used as dyes. अभी ये क्या होता है? See, यहाँ पर है ना, तुम्हारा जीन्स वगैरह सब है ना, उसका जो डाइंग होता है, डाइज मतलब कलरिंग, ठीक है, तो वो कलरिंग, वो जो कलर जो है वो सारे ये अजो कंपाउंड्स ही होते हैं. समझा क्या? जो भी कलर्ड ड्रेसेस है ना, वो कलर्स बनता कैसे है, डाइज कैसे बनता है, बाय दिस टाइप ऑफ अ रिएक्शन. ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन. तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन नहीं है तो तुम्हारा जीन्स या तुम्हारा कलर्ड कपड़े नहीं रहेंगे. तो डायजोटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डाइंग इंडस्ट्री. डाइंग मतलब कलर वाला इंडस्ट्री. ठीक है. So this is an example of electrophilic aromatic substitution reaction. ये कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये वाला लाइन अंडरलाइन करके रखो. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कपलिंग रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? द इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज डायजोनियम सॉल्ट. ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है. ठीक है. And this electrophile we are substituting it. So substitution reaction usually occurs para to the ring activating group. ये सब में क्या है बताती हूँ. ठीक है. तो अभी ये वाला रिएक्शन में लिखती हूँ. देखो इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है. कपलिंग में क्या होता है, देखो तुम्हारे पास डायजोनियम क्लोराइड है. दिस इज योर डायजोनियम ग्रुप. ठीक है. N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस. सेम जो N2Cl माइनस लिखते थे ना, उसी को मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म पे लिखा है. ठीक है. अभी इसको क्या कर रहे हैं कपलिंग रिएक्शन में? इट इज ट्रीटेड विद अ फिनॉल, है ना, ये फिनॉल है, इसको फिनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं. सो व्हेन इट इज ट्रीटेड विद फिनॉल, नो व्हाट हैपेंस इज, ये फिनॉल का ये पैरा पोजीशन है ना, दिस इज द पैरा पोजीशन. यू ऑल नो व्हाट इज पैरा पोजीशन, नो? यस और नो? Yes, ma'am. पैरा मींस ऑपोजिट टू दिस ग्रुप. जो ग्रुप इसके ऑपोजिट में उसको पैरा बोलते हैं. तो क्या होता है अभी, ये पैरा पोजीशन में ना ये N2 आके अटैच हो जाता है. तो क्या होता है, ये Cl और ये H निकल जाता है और बाकी का ग्रुप अटैच हो जाती है. तो अटैच होता है तो क्या मिलता है, देखो ये बेंजीन ऐसे ही रहेगा. N ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड हो जाएगा. N ट्रिपल बॉन्ड विल बिकम व्हाट, डबल बॉन्ड. और and this N will get attached to the para position of this benzene ring. समझा? ये दोनों ग्रुप ज्वाइन हो गया है. So this is called as coupling reaction. Have you understood this? Yes, ma'am. ये है ना, Yes, इसका ma'am. नाम क्या रहेगा देखो. This is called as para hydroxy. पैरा पोजीशन पे है ना हाइड्रोक्सी ग्रुप, पैरा हाइड्रोक्सी azobenzene. This compound is known as para hydroxy azobenzene. और ये जो कंपाउंड है ना, इसका कलर ऑरेंज होता है. दिस इज ऑरेंज डाई. तो तुमको ऑरेंज कलर चाहिए तो ये वाला रिएक्शन तुमको करना पड़ेगा. समझा? एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन माइल्ड अल्कलाइन मीडियम. माइल्ड बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है. समझ में आया क्या? Yes, ma'am. ओके. ठीक है. मैं एक और एग्जांपल लिखेगी. अभी तुम लोग मुझे इसका प्रोडक्ट क्या आएगा बताने का. ठीक है. N ट्रिपल बॉन्ड N. स्टार्टिंग मटेरियल तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर फिनॉल के बदले में ना मैं एरोमेटिक अमाइन लेती हूँ और ये माइल्ड बेसिक मीडियम रहेगा. अभी मुझे बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो. Benzene ring. Benzene ring and double bond. N डबल बॉन्ड N. यहाँ पर क्या आएगा, बेंजीन रिंग और ये NH2. NH2. यहाँ का H और यहाँ का Cl निकल गया. ठीक है. माइनस HCl हो गया और ये बन गया. अभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा अमीनो. देखो यहाँ पर NH2 है ना, अभी यहाँ पर OH था. दिस इज पैरा अमीनो अजो बेंजीन. और इसका कलर येलो होता है. तो तुमको येलो कलर चाहिए तो ये वाला यूज करने का, ऑरेंज कलर चाहिए तो ये वाला यूज करने का.
समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो तुम्हारा अभी 7:30 को लेक्चर है ना? Yes, ma'am. So I'll stop it here. But tomorrow I want you all to study and come जो मैंने बोला था. ठीक है? I'll be asking you all the questions. आज का टॉपिक बहुत इजी है, एक बार बस रीड करो, तुरंत रीड करो, then you will remember everything what was done. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, so I'll stop now. We'll meet you tomorrow. हाँ, कल रहेगा क्लास. Thank you, ma'am. Yes. Bye, ma'am. Okay, bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.
Good evening, everyone. Shall we start now? Good evening, sir. Good Good evening. evening, sir. Actually, make me co-host, beta. Okay. Now, what we have finished last time? What we have finished last time? Yes. Can you please tell me that what we have finished last time? Yes. 7.2 question number 2. We have finished, no? 7.2 question number 2. Yes. Second one finish or not? Yes. Or first Finish. one we have Second. finished? Hello? Hello? Please give me the answer in the chat box. Second question also finished, no? Yes. 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 Please. Okay. Now the next one. Look at over here. Third one. Third one. We'll start with the third one. Okay. Okay. We'll start with the third one. Okay. Okay. You have to give me the answer. I'm sharing. Please make me host. Yes. I have to share the screen, no? Yes. So Please. Vinay sir will make you the host. Okay, Vinay sir. Wait. Yes, sir. I will call them. Okay, wait a minute. Okay.